سب سے پہلی زیارت ہے غار سجدہ۔ یہ زیارت مسجد نبوی شریف سے صرف 1.5 یا 2 کلومیٹر کی دوری پر بالکل واقعبل ڈسٹینس پر موجود ہے۔ اس غار کی خاصیت یہ ہے کہ اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہاں پر آپ نے عبادت فرمائی تھی، اور اسی غار میں آپ نے سجدہ فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اس کو غار سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور جنگ خندق کے موقع پر یہاں پر آ کر کے آپ نے جنگ کی فتح کے لیے دعا فرمائی تھی۔ دوسری زیارت ہے سبا مساجد، جسے 7 ماسک بھی کہتے ہیں۔ غار سجدہ سے بالکل 300-400 میٹر اور تھوڑا چل کر آپ آگے آئیں گے تو یہ مقام موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام کی ایک عظیم جنگ خندق لڑی گئی تھی، جب عرب کے تمام دشمن، تمام قبائل ایک ہو کر کے مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں رہ کر دشمنوں کا ڈیفنس کرنے اور ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ لیا۔ مدینہ شریف تینوں طرف سے بند تھا، لیکن ایک جگہ سے کھلا ہوا تھا جہاں سے دشمن حملہ کر سکتے تھے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک خندق کھدوایا اور اس خندق میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ آپ بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوکے تھے کئی دن کے، اور خندق کھودا کرتے تھے اور صحابہ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بہت ہی جلد لانے والا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور کافر رسوا ہوئے، تو وہ جنگ خندق اسی جگہ پر لڑی گئی تھی، اور جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپس اور خلفائے راشدین کے کیمپس وغیرہ لگے ہوئے تھے، وہاں پر ابھی 7 مسجدیں تعمیر ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو سبا مساجد یا دی 7 ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری زیارت ہے مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ زیارت مسجد نبوی شریف سے صرف 6-7 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ ناظرین، اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو 6-7 مہینے تک پہلا ہمارا قبلہ تھا مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پیارے آقا کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصی نہیں بلکہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کے دل کی آرزو سن لی اور نماز ہی میں حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا رخ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی جانب کریں۔ تو اسی مسجد میں نماز ہی کے دوران پیارے آقا نے اپنا قبلہ چینج کیا تھا، تو اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ چوتھی زیارت ہے جنت البقیع۔ اب جنت البقیع کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ مقدس قبرستان ہے جہاں پر دفن ہونے کی، جہاں پر مرنے کی ہر عاشق رسول تمنا رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ یہ جنت البقیع بالکل مسجد نبوی کی احاطے ہی میں موجود ہے۔ یہاں پر حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مزار، حضرت امام حسن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے علاوہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ جنت البقیع ہر روز فجر اور عصر کے بعد زائرین کے لیے اوپن کیا جاتا ہے، اور لاکھوں مسلمان یہاں کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ 5ویں زیارت ہے مسجد قباء۔ یہ مسجد اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جو کہ مسجد نبوی سے صرف 3-4 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اس مسجد کی تعمیر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 6ٹھی زیارت ہے بیر الختم، اور یہ زیارت مسجد قباء کے کمپاؤنڈ ہی کے اندر بالکل اس کے پیچھے والے حصے میں موجود ہے۔ یہاں پر ایک کنواں موجود تھا جہاں پر اکثر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور اس کنویں میں پیر ڈال کر کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے۔ آج یہاں پر کنواں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کنویں کی جگہ پر ایک سرکل بنایا ہوا ہے اور نشاندہی کی گئی ہے کہ اسی جگہ پر وہ کنواں موجود تھا، تو اس کی بھی زیارت ضرور کریں۔ 7ویں زیارت ہے مسجد بنی انیف۔
ये जियारत मस्जिद क़ुबा के अगर पीछे के हिस्से में सिर्फ 200 मीटर चलते हुए हम यहाँ पर आएंगे तो ये मस्जिद हमें नजर आएगी। इस मस्जिद की जगह पर सहाबी रसूल हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मौजूद था। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो मदीने वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल इसी जगह पर आकर के किया था और मदीने की बच्चियां डफ बजाते हुए पढ़ा करती थीं ताला अल बदरु अलैना। तो इस जगह पर तशरीफ लाने के बाद हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने का पहला सजदा फरमाया था। तो ये वो मकाम है जहाँ पर प्यारे आका ने सबसे पहला सजदा किया था मदीना शरीफ में, और ये वो जगह है जहाँ पर सहाबी रसूल हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था। और इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 या 3 मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। 8वीं ज़ियारत है मस्जिद जुमा। ये वो मस्जिद है जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में आने के बाद सबसे पहले नमाज जुमा अदा की थी, और ये जगह कबीला बनी सालिम के लोगों की थी। यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जुमा की नमाज अदा की, जिसकी वजह से इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद जुमा रखा गया। ये मस्जिद भी मस्जिद क़ुबा के बिल्कुल आगे के हिस्से में 1 किलोमीटर दूर वाकिबल डिस्टेंस ही पर मौजूद है। 9वीं ज़ियारत है सहाबी रसूल हज़रत उतबान बिन मालिक का घर, जो कि जुमा मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट ही में मौजूद है। ये घर नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। 1400 साल पहले जिस तरह सहाबी रसूल ने अपने घर की तामीर की थी, हूबहू वही शक्ल में आज भी माशाअल्लाह मौजूद है और वही घर मौजूद है। सहाबी रसूल हज़रत उतबान बिन मालिक जब ज़ईफ़ हो गए तो आपकी आंखों की रोशनी चली गई, आपको नज़र नहीं आता, तो आपने प्यारे आका से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं और 2 रकात नमाज अदा करें। मैं तो बाहर नहीं जा पाता, जिस जगह पर आप नमाज अदा करेंगे मैं उसे अपना मुसल्ला बना लूँगा, नमाज पढ़ने की जगह बना लूँगा। तो सहाबी रसूल हज़रत उतबान बिन मालिक की गुजारिश पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपने 2 रकात नमाज भी अदा की और फिर हज़रत उतबान बिन मालिक ने उस जगह पर जिंदगी भर नमाज अदा की। 10वीं ज़ियारत है जबल उहद, जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जबल उहद जो है जन्नती पहाड़ है और ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। इस पहाड़ की आप ज़ियारत करेंगे और इसी जगह पर जो है जंगे उहद भी लड़ी गई थी, जो कि इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी। और जबल उहद मस्जिद नबवी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। 11वीं ज़ियारत है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार शरीफ। उहद के इसी मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हज़रत सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार शरीफ मौजूद है, जो कि जंगे उहद ही में शहीद हुए थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये हज़रत अमीर हमज़ा की मज़ार शरीफ है। 12वीं ज़ियारत है सहाबी रसूल हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का मुक़द्दस बाग। ये बाग मस्जिद नबवी शरीफ से 3-4 किलोमीटर की दूरी ही पर मौजूद है। और इस बात की ख़ास बात यह है कि ख़ुद हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इस बाग में खजूर के दरख्त लगाए थे। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर भी दूसरी जगहों की तरह आसानी के साथ आकर के आप ज़ियारतें कर सकते हैं और इस बाग से खजूर भी खरीद सकते हैं। 13वीं ज़ियारत है बीर अल फ़कीर। ये कुआं हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग के बिल्कुल बाजू ही में मौजूद है और कहा जाता है कि इसका पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल फरमाया है। ये आप ही के ज़माने का कुआं है। इस कुएं की ख़ास बात यह भी है कि हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग को जो पानी जाता है वो इसी कुएं का पानी जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाला हुआ एक जानवर था जिसे याखूर कहते हैं, जिसका नाम याखूर था और अदबन हम उसको हज़रत याखूर कहते हैं। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल हुआ तो प्यारे आका के विसाल के सदमे की वजह से याखूर इस कुएं पर आते हैं और इसमें कूद करके अपनी जान दे देते हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर इस कुएं का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नल लगे हुए हैं, अगर आप इस कुएं का पानी पीना चाहें तो यहाँ से पी सकते हैं और अपने घरों पर भी ले जा सकते हैं। 14वीं ज़ियारत है बीर अल गर्ज। ये कुआं जन्नती कुआं कहलाता है और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग से बिल्कुल 700 मीटर की दूरी पर
वॉकेबल डिस्टेंस पर ही ये कुआं मौजूद है। इस कुएं को प्यारे आका ने जन्नती कुआं कहा और इस कुएं में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन भी डाला, क्योंकि इस कुएं का पानी जो है पहले खारा था। प्यारे आका के लुआबे दहन पढ़ने के बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया। सुभान अल्लाह। ज़ायरीन जो है इस कुएं का पानी भी बड़े अदब के साथ पीते हैं और अपने घरों पर भी ले जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस कुएं के पानी से मुझे गुस्ल देना। सुभान अल्लाह। आज के इस वीडियो की 15वीं और आखिरी ज़ियारत है मस्जिद गमामा। ये मस्जिद नबवी के इहाते ही में बिल्कुल बाजू ही में मौजूद है और इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसी जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का अदा की थी। यानी जब मदीना शरीफ में कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का अदा की और फिर दुआ फरमाई, जिसकी बरकत से अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमाई। और इस जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा ईद की नमाज अदा की है। इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाजें भी अदा होती हैं। अगर हो सके तो इस मस्जिद में भी नमाज अदा करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, बड़ी मेहनत से ये वीडियोस मैं आप तक ले आता हूँ ताकि आप घर बैठे ये जियारतें कर सकें। तो इन वीडियोस को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।